Hello everyone, welcome back to ThinkBox podcast. I am Dasha Srivastava. Today we have a very special guest with us, Dr. Vijay Tiwari sir, Vice Chancellor of Shri Ram Swarup Emerald University, बाराबंकी लखनऊ से उल्लास स्टार्ट है राइट राम स्वरूप में। तो उल्लास में ऐसी कौन कौन से डिफरेंट गेम्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट को और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। सर राम स्वरूप में सबसे फेमस प्लेस है बीबीसी राइट, आपने सुना होगा। बीबीसी बहुत फेमस है यहाँ का। तो यहाँ पे ऐसे भी और गेम्स के लिए कौन कौन से प्लेस दिए गए हैं जो फ्रेशर जो भी आए उन्हें पता नहीं है, अभी उन्हें बस देखने में लग रहा है अनुभूति ग्राउंड है, बीबीसी कोर्ट है। तो और भी ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस है? So, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंकबॉक्स पॉडकास्ट। आई एम जैसे श्रीवास्तव और आज का एक एपिसोड काफी इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जो सिर्फ स्टूडेंट के पढ़ाई पे फोकस नहीं करता है बल्कि एक स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। चाहे बात हो विवेका जैसे टेक्निकल फेस्ट की जहां इनोवेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, या उल्लास जैसे स्पोर्ट फेस्ट की जो डिसिप्लिन, फिटनेस और टीम स्पिरिट को इनकरेज करता है, या और अनुभूति जैसे कल्चरल फेस्ट की जो क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस को एक साथ प्लेटफॉर्म देता है। ये सब इवेंट्स मिलके एक स्टूडेंट की कंप्लीट जर्नी को शेप करते हैं। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, डॉक्टर विजय तिवारी सर, वाइस चांसलर ऑफ श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, बाराबंकी लखनऊ। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। thank you. सर आप कुछ कहना चाहेंगे, आपको थिंकबॉक्स पॉडकास्ट पे आके कैसा लग रहा है? लाइक Oh, this is a wonderful experience. In fact, these are one of initial reactions which I will be giving on podcast. So I'm excited. I'm excited to interact with you all and to be part of you. okay, Thank thank you so much sir. So could you please tell us about yourself, your journey in SNMU? Yeah, actually, my background has been a long checkered journey where I have moved in from defense to industry, industry to research, from research to the university now. It's been almost more than 4 months when I have joined the university. As a vice chancellor, it has been extremely challenging and satisfying tenure because Ram Sarup University has every day a new thing to offer. So there has never been a dull day. I've always been learning, and that thing with our students, and it is always wonderful to meet a younger generation because then you are living your life through them. So I'm really excited about this assignment. Yes. ओके, थैंक यू सो मच सर। सर कल से उल्लास स्टार्ट है राइट राम स्वरूप में। तो उल्लास में ऐसी कौन कौन से डिफरेंट गेम्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट को और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं? Yeah, as you see the name Ullas. So we actually break the shackles. Our students come out of study routines, and then we are putting them through various games. They are participating in various teams. You'll be surprised to note that I have 150 plus teams which are now Okay. participating in Ullas, and of which 61 teams have come from outside, like the universities from Lucknow University, Integral, BBD, and all such universities which are located in Lucknow. And there's a lot of traction and there's a lot of interest shown by the students. And on the sports front, we really let our students use, and we always uh, encourage them that they should be part of any such event. And we are really looking forward to LUS, and I hope that we will have a wonderful time. And I excited to see our students excelling in the sports. ओके सर, उल्लास राम स्वरूप में पिछले 12 साल से चल रहा है राइट? Yes. तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को ज्यादा दिखाया जाता है। लाइक अगर मैं बात करूँ, मैं जैसे जानती हूँ संयोगिता सिंह, वो यहाँ बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट है और वो अभी कोऑर्डिनेटर है। तो मतलब ऐसे और भी चीजें जिसमें लड़कियों को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, तो इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा? You see, we are gender neutral. We respect diversity. ओके And our campus is that way
it has no bars. Both the girls and the boys, they get the equal opportunities. In fact, you'll be surprised. The girl students at times excel our boys. You'll be surprised to know that I have a girls kabaddi team. Okay. And that's pretty popular. And sometimes, they are even working with boys and students, even training them. So apart from kabaddi, we have other sports where the girls are excel. In fact, we have adopted volleyball as our university sport, and there the girls are the champions. So girls are doing so well, and we really feel proud. And most of the time, I find our girl students are guiding the boys. So it's good, and we really encourage that. ओके सर, रामस्वरूप में सबसे फेमस प्लेस है बीबीसी, राइट? आपने सुना होगा, बीबीसी बहुत फेमस है यहाँ का। तो यहाँ पे ऐसे भी और गेम्स के लिए कौन कौन से स्पेस प्लेस दिए गए हैं जो फ्रेशर जो भी आए उन्हें पता नहीं है, अभी उन्हें बस देखने में लग रहा है अनुभूति ग्राउंड है, बीबीसी कोर्ट है, तो और भी ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस है? So, you see, our viewers maybe just imagine what is BBC. So, it's a basketball court. So, we have a world level basketball court which is available to us. In addition, we have two volleyball courts. We have two indoor badminton courts. We have track and field ground. We also have cricket and indoor games. We have large number of gymnasiums we have created. So, our students get large opportunity. If they have to, apart from studies, if they want to excel in the sports, or they want to have a bodybuilding, or they want to have some co-curricular, extracurricular, that is all permitted. The end of the day, it's their choice. They want to study, they have to put them through a rigorous schedule. But at the same time, we also value their time for sports and personal interactions. So yes, we have large number of sports facilities on ground. ओके सर, जो बच्चे लाइक स्टडी में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो और एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं या उनका कुछ लोग का माइंडसेट होता है कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ रहा, मैं इसमें जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो, मेरी पढ़ाई की चीज पे अच्छी नहीं आएगी। तो जो दोनों हैंडल करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या जो बस पढ़ाई में उन्हें स्पोर्ट्स में भेजने के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? पहले होता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पर वो पुरानी बातें हो गई, क्योंकि स्पोर्ट्स डेवलप नहीं था। स्पोर्ट्स में आप प्रोफेशन नहीं समझ सकते थे। नाउ इट्स अ प्रोफेशन। लोग अपना पूरा समय स्पोर्ट्स में फुल टाइम देते हैं और एक्सेल करते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें कि लास्ट डिकेड में कंट्री हैज रियली कम अप ऑन द स्पोर्ट्स arena. Internationally, we are doing so well. Our boys and girls are really doing wonderful, and they have given a message that yes, sports is a career option and go for it. So we also encourage, and we also tell our students, studies are of course good. You must pursue what your dreams are, but then they have to be dovetailed with the sports. So sports are important to us. ओके सर, फ्यूचर में स्पोर्ट्स कल्चर को रामस्वरूप में आप और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना चाहेंगे? अभी भी मैं देखता हूँ कि कुछ हेजिटेशन है हमारे स्टूडेंट्स में, और वो शायद ये सोचते हैं कि मैं अगर 1 घंटा स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो वो टाइम वेस्ट होता है, क्या मैं उसे अपनी स्टडीज में लगा सकता हूँ? क्योंकि मैं खुद डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, और मैं इस चीज को अपने 35 इयर्स के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर आप 1 घंटे स्पोर्ट्स खेलते हैं या 1 घंटे अपने स्पोर्ट्स को देते हैं, सो बी रेस्ट एश्योर्ड, जो काम आप अगले 2 या 3 घंटे में कर सकते थे, वो आप सिर्फ हाफ द टाइम 1.5 या 2 घंटे में कर लेंगे। सो वॉट एवर यू लूज ऑन स्पोर्ट्स फील्ड, दैट मच और मोर देन दैट यू अर्न ड्यूरिंग योर स्टडीज, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपकी जो समझने की शक्ति होती है वो बढ़ती है। तो इसलिए स्पोर्ट्स खेलिए, और स्पोर्ट्स खेलने के बाद पढ़ाई भी करें। ओके सर, रामस्वरूप में जो भी फेस्ट होते हैं लाइक विवेका, अनुभूति, और अभी तो उल्लास कल से ही स्टार्ट हो रहा है, तो विवेका में 2 ऐसे गेम है, फ्री फायर आपने सुना होगा, BGMI। ओके, फ्री फायर क्या होता है, बच्चे घर पे फोन चलाते हैं, आपके भी घर पे चलाते होंगे, आप पक्का टोकते होगे कि हाँ ठीक है फोन मत चलाओ, इतना नहीं चलाना चाहिए, और उसी गेम को यहाँ पे कंपटीशन में रखा गया है। तो इस पे अगर आपको पेरेंट्स को समझाना हो तो आप क्या उन्हें बताना चाहोगे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है
कि गेम खेलने से आपके रिफ्लेक्शंस इंप्रूव होते हैं, गेम खेलने से आपकी जो अटेंटिवनेस होती है वो बढ़ती है। हाँ, किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा करेंगे तो वो खराब होगा, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो खराब होता है। तो इसी तरह से अगर आप बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं फिर वो डिस्ट्रैक्शन ना, लेकिन अगर आप एक लिमिट में विद इन द गार्ड्रेल्स विद इन द लिमिट्स खेलते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत एक अच्छी बात है। और स्टूडेंट्स को अजाइल होना, स्टूडेंट्स को अलर्ट होना ये जरूरी है, और वो गेम सिखा दें। और हम इसी चीज को साबित करने के लिए हमने स्पेशली इसे रखा है कि देखिए गेम बुरी चीज नहीं, लेकिन गेम को एक कंपटीशन के लिए एक लिमिट में खेला जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट। ओके, उल्लास को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? द स्पिरिट एंड द स्पिरिट, आई थिंक इट्स द स्पिरिट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। उल्लास, happiness, happiness with confidence and with responsibility. So I give this message to all my students. उल्लास आप सबके लिए जिम्मेदारी है, एंजॉय करिए लेकिन अपनी जिम्मेदारी के साथ। ओके, जो बच्चे अभी 2026 में एडमिशन लेने जा रहे हैं रामस्वरूप में, उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो रामस्वरूप में एडमिशन क्यों लें, और अगर ले तो वो उन्हें उनसे क्या क्या चीजें मिस ना हो? जो स्टूडेंट्स यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँ कि देखिए, इफ यू वांट टू कम टू रामस्वरूप, आई कैन अश्योर यू, यू आर इन फॉर एन एक्साइटिंग कैंपस लाइफ। यहाँ पर आपको डल मोमेंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर आएंगे और एक स्लो, डल या विदाउट एनी एक्टिविटी या ओनली स्टडीज के लिए आएंगे तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। यू कम हियर, you study hard, you play hard, you celebrate hard, you make good friends, you make camaraderies, and we are there to look after you. And we will make sure that when you get out of this institute, you always remember and we make you a proud citizen of this country. So be with us and we will make sure that you are an important citizen of this country. ओके, देन आप रामस्वरूप को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? Oh, Ramsarup, the first and the foremost is the academic integrity. Then, of course, sports, and then holistic overall development. That is Okay. Ramsarup. ओके, सो आपने इतना कुछ रामस्वरूप के बारे में बताया रिलेटेड टू उल्लास, और आगे चल के आगे भी जो एपिसोड आएंगे उसमें अनुभूति और विवेका और भी बहुत सारे ऐसे फेस्ट होते हैं जिनमें आपको बताया जाएगा उसके बारे में। ओके, सो आप थिंक बॉक्स पॉडकास्ट पे अपना पॉडकास्ट किए तो आपको कैसा लग रहा है, या इसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बताना चाहें? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब यंग लोग हैं और मुझे इतनी खुशी है कि हमारी यंग जनरेशन इतना अच्छा काम कर रही है। एंड इन फैक्ट यू नो, you are our role models and source of inspiration. So we really look forward to associating with you and wish you all the very best. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंसाइटफुल थॉट्स। आई थिंक आज का ये जो एपिसोड है, जो बच्चे सोचते हैं कि रामस्वरूप में फेस्ट में बस कबड्डी और खो खो ही होता है, नहीं, यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपने अभी देखी भी ना हो। क्यों? क्योंकि आप किसी क्लब में हो तो आप डांस में एंगेज हो, आप स्टडी में केवल हो तो आप बस उसी में हो, आप किसी और चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अगर आपको उल्लास में जाना है और अपॉर्चुनिटीज लेनी है बाहर के लिए, लाइक बीबीडी यूनिवर्सिटी, वहां पे भी फेस्ट होते हैं, हम लोग उन्हें बुला रहे हैं तो वो लोग भी हमें बुलाएंगे। तो इस उल्लास फेस्ट में बीबीडी, अमिटी, एलयू और भी बहुत कॉलेजेस के स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। So thank you so much for watching this episode. If you like this episode, don't forget to like, share, comment. Thank you so much, everyone.